Anyone who is not present for the last time lecture of NABH. Okay, then we'll take in detail about NABH in your departmental lectures, particular departmental lecture. I'll go ahead with forms and formats. So these are the required forms and formats according to NABH. I'll start with the first one. Initial assessment form, there are two initial assessment forms. One is for doctors and one is for nurses. These assessment forms are to be filled within 24 hours of admission of the patient. Okay. So this is for doctors. इसमें जो basic history collection you are doing on admission of patient. Basic history collection which you are doing on admission of patient, like patient आता है casualty में and patient is going to get admitted to the ward or ICU. So that I think अभी continuation sheet में लिखा जाता है वो details, right? हाँ, तो वही details इसमें लिखना है and this is one of the KPI. सब लोग aware है this is one of the KPI, time of initial assessment, है ना? So how we'll measure the time if you're writing in progress sheet, continuation sheet, you cannot know what is the time of initial assessment. अगर present है तभी enter करें तभी पता चलेगा. But this can be entered from anywhere and this is one of the important document. Like chapter 1 में, NABH के chapter 1 में भी it is mentioned. Initial assessment for doctors and for nurses, both on admission of patient within 24 hours of admission of patient fill करना है. The same is for nursing initial assessment also. तो इसमें the main thing is that these two forms, ये जो सामने वाला है last time I think nurses से सब दो ही जन हैं. So, sorry? हाँ. So these two pages ही सिर्फ fill करना है और बाकी ये दोनों है वो reference के लिए है. अभी इसमें से भी important one thing that nurses initial assessment में भरा जाता है, that is fall risk assessment. Fall risk assessment is for vulnerable patient and बाकी VIP score is for patient with IV line. जो बाहर से आ रहा है patient तो उसका fill करना है. अगर आपको लग रहा है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का चांसेस है पेशेंट को, देन आपको ये स्कोर फिल करना है. बट अदरवाइज ये जो दो पेजेस है द सेम हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट का नीड्स के हिसाब से, इट्स जस्ट लाइक अ चेकलिस्ट. और इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है करके, जिसका नाम है जो नर्स फिल कर रही है उसका नाम एंड इंचार्ज इज सपोज टू चेक इट कि फिल किया है प्रॉपरली. तो जो एडमिटिंग नर्स है, पेशेंट आया फर्स्ट वाइटल्स तो लिया जाता है ऑन एडमिशन. पेशेंट जैसे ही एडमिट होता है वार्ड में आता है तो फर्स्ट वाइटल्स लेते हैं ना, तो सेम थिंग वाइटल्स का एंट्री करना है, ये फिल करना है एंड एंड ऑफ ईच शिफ्ट इंचार्जेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको क्रॉस चेक करके नीचे दे हैव टू साइन. सो दिस ऑल्सो सेम विद इन फॉर 24 आवर्स ऑफ पेशेंट्स एडमिशन. Next is patient treatment chart. I think either already there is one chart they are following in wards, but in that they are not mentioning the administration, like which nurse is administrating, right? इधर medication form भरा जाता है ना, कोई वार्ड में मैंने देखा, but उसमें name और sign नहीं है. So how you know? Medication error is also one of the KPI, है ना? तो how you know कि किसके वजह से medication error हुआ है? So it is important to know the name of the person administrating the medication, ताकि वो people को लेके we can give them training session like how to administer the medication. So this is treatment chart. This is example. This is from another hospital. So we can implement this over here. This is made based on government setup only, and it is made easy for the staff. So if you people have any suggestion, इसमें changes कर सकते हैं, you can make. This is not the finalized copy. So this is the main medication chart. This side is for the doctors and this side is for the nurses. So during the rounds, doctors are writing in the continuation sheet जो नया medication है या फिर जो भी medication है. Instead of writing that, the same thing you can write here, but it should be written in capital letters. वो इम्पॉर्टेंट है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है
And this side is for doctors. The doctors will write the name of the drug, dose, route, frequency. And this side is for the nurses. This chart can be used for 5 days. And it is classified morning, evening and बीच में one more is like in between कोई medication दे रहे 6 o'clock को कुछ दे रहे. That and the last one is for night. And इधर medication cross check करेंगे nurses and उधर time chart करेंगे and नीचे per shift का sign आएगा. So normally corporate setup में कैसे होता है? Staff को assign किया जाता है beds like 1 to 5, 6 beds. So उसमें साइन होता है, but this is made shift wise because any staff can give medication, no. But ये patient का जिस staff ने medication दिया है, that should be mentioned. इसलिए इसको shift wise अलग करके रखा है and this can be used for 5 days. 5 days के बाद और एक लगाना पड़ेगा. तो medication chart में any changes? Clear नहीं. क्या आपको इसमें से क्या देखना है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? कॉलम्स नहीं समझ में आ रहा. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और इसमें मॉर्निंग, इवनिंग और बीच में एक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. इसके पहले का जो इनिशियल इनिशियल असेसमेंट जूम कर. तो इसमें क्या मेंशन किया है रिव्यू? एक तो फर्स्ट आपको ऊपर एक लेटर हेड दिख रहा है ऊपर, सो वो सब फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स में होना चाहिए. एनएबी सेज कि तुम लोग कोई भी फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स यूज कर सकते हो, इसका पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं है एनएबी में. बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एनएबी सेज इज इट शुड बी सेम एवरीवेयर इन द हॉस्पिटल. ठीक है, इनिशियल असेसमेंट एक ही होना चाहिए सब जगह पे, लाइक दैट. सो ये जो ऊपर का लेटर हेड है उसमें डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन्ड है. So if any assessor asks you, show me what is this document number. So we'll have a list of documents, forms, formats, checklists, records, reports. इस सब का एक लेटर हेड में डॉक्यूमेंट नंबर होगा. That is one of the important thing. And इसके आगे लिखा है patient's name, age, and CR number is for that hospital, but UHID is the UHID they will ask. कोई भी patient का UHID सब स्टाफ को पता होना चाहिए. व्हाट इज योर हॉस्पिटल्स UHID, बिकॉज दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई वन पेशेंट, नॉट बाय नेम और बेड नंबर. UHID इज हाउ यू आइडेंटिफाई अ पेशेंट. कंसल्टेंट नेम जिसके अंडर पेशेंट एडमिटेड है, डिपार्टमेंट, एडमिशन डेट एंड उसके नीचे बेसिक इंफॉर्मेशन में ये पूरा वाइटल्स है. टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, BP, SpO2 एंड वेट एंड हाइट. एंड देन उसके नीचे है पेशेंट, हाउ डिड द पेशेंट कम इन, कि वॉकिंग, व्हील चेयर, टिक करना है आपको, कैसे आया पेशेंट वार्ड में, स्ट्रेचर. देन एडमिटेड ऑन इमरजेंसी बेसिस और रेगुलर वो है. एंड देन नीचे ये है कि वो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ये सब आपने पेशेंट को बताया. साइड रेज, वल्नरेबल पेशेंट है तो साइड रेज डाला तो टिक करना है. एंड व्हाट इज द मेडिकेशन पॉलिसी, लाइक क्या है आपका मेडिकेशन, कैसे आएगा पेशेंट, खुद लाना है, हम लोग इंडेंट करेंगे. वो जो भी आप बेसिक ओरिएंटेशन देते हो पेशेंट आने के बाद कि ये नर्सिंग स्टेशन है, आपको कुछ भी बताना है तो इधर आके पूछ सकते हो, ये सिस्टर को पूछ सकते हो, वो बेसिक ओरिएंटेशन का है. देन दिस इज पेन असेसमेंट. पेन असेसमेंट है. देन नेक्स्ट पेज में दिस इज अटेंडेंस पास अगर है तो अटेंडेंस पास दिया है क्या, एंड वैल्यूएबल्स जो पेशेंट के हैं उसके कोई भी ऑर्नामेंट्स आपने निकाला है वो अटेंडेंट को दिया है तो उसका सिग्नेचर. एंड उसके बाद एबिलिटी टू डेली लिविंग, ये आपके आई थिंक नर्सिस नोट्स में पहले हम लोग लिखते थे कि पेशेंट वो एम्बुलेटरी है, पेशेंट का इंटेक क्या है,
वही सेम पेशेंट डिपेंडेंट है क्या, खुद कर सकता है क्या सब चीज़ें। एंड नेक्स्ट इज दिस इज द, ये स्केल है, इसका रेफरेंस जो है वो नेक्स्ट पेज में है। सेम प्रेशर अल्सर, पेशेंट जिसको वल्नरेबल है बेड सोर डेवलप होने का, उसका ही फिल करना है। सेम VIP स्कोर है, दिस इज फॉल रिस्क असेसमेंट स्केल, दिस इज DVT, आपका बिशप एंड ग्लास्कोकोमा स्केल। तो पेशेंट ट्रीटमेंट चार्ट में दिस इज फॉर IV फ्लूइड्स, पोस्ट ऑप पेशेंट कोई है उसको IV फ्लूइड दे सकते हैं, ये IV फ्लूइड के लिए है, ये इन्फ्यूजन्स के लिए है। ये साइड इट इज लाइक अ 4-पेज थिंग। तो ये साइड आपका IV फ्लूइड्स आएगा, अंदर जो है मेन 2 पेज का ये है, और इसके पीछे के साइड इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का सिरिंज पंप उसमें से जो देते हैं वो वाले। तो ट्रीटमेंट शीट में चेंज, हाँ आई थिंक ये पुराना वाला है, इसको मॉडिफाई किया था, ट्रीटमेंट शीट में ही डाइट और रेफरेंस के लिए भी ऐड कर दिया था इसमें पीछे के साइड में। तो उसमें एक ही चार्ट में डॉक्टर्स जो आएंगे पेशेंट को देखने के लिए, पीछे ही डाइट अगर उनको कुछ स्पेसिफाई करना है कि डायबिटिक डाइट दो पेशेंट को, तो किधर लिखते हैं, प्रोग्रेस शीट, कंटिन्यूशन शीट में। सो इसके पीछे ही मेंशन कर सकते हैं जब राउंड्स में आते हैं। ये आई थिंक पुराना वाला वर्जन है, बट इसके ही पीछे रेफरेंस के लिए भी एक कॉलम है एंड डाइट, पेशेंट डाइट प्लान के लिए भी कॉलम है। तो मेडिकेशन, डाइट, रेफरेंस सब कुछ एक ही चार्ट में आपको आ जाएगा, उतना जगह है। आपका जो नर्सिस का सेपरेट लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको फिजिकल कॉपी लाके दिखाती हूँ, वो आप ट्राई कर दो। तो इसमें डॉक्टर्स का कुछ है जो चेंज करना है। This is only for 1 day. 5 days, This page 5 days, 5 days. But इसमें oral medications भी ऐड कर सकते हैं। yes, oral medication, injectables, this is for IV, this is for IV fluids, infusion, and here you can mention oral medicine. फ्लूइड इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि 2-2 चार्ट, एक दिन की 2 चार्ट होते हैं। IV फ्लूइड अगर पेशेंट को ज़्यादा है तो आप बोल रहे हो ना, तो उसके लिए एक सेपरेट सप्लीमेंट रहेगा ओनली फॉर IV फ्लूइड्स। नहीं कोई तो तो पेशेंट patient को ज़्यादा रहेगा। टैबलेट्स इंजेक्टेबल प्लस IV फ्लूइड भी रहता है, तो वो एक ही चार्ट में आएगा। एक ही चार्ट है उसके लिए। ये जो 4 पेज का मैं दिखा रही हूँ ना, ये मैंने बताया आपको एक बुकलेट जैसा आएगा, 4 पेज का, 4 पेज का, तो सब एक ही शीट में रहेगा। मेडिकेशन चार्ट मतलब सब मेडिकेशन एक ही शीट में। ये क्रिटिकल केयर फ्लो शीट ICU में आई थिंक अभी ओनली इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाता है विद टेम्परेचर वाइटल्स का चार्ट, तो उसके बदले में इधर भी मेंशन कर सकते हैं। इसके पीछे है इनटेक आउटपुट चार्ट। सो इसमें आपका सब कुछ मेंशन हो जाएगा, प्लस HICC वालों लोग के लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज इधर आप सेंट्रल लाइन का डेट, आर्टीरियल लाइन डेट, सेटोस्टोमी डे, ये भी मेंशन कर सकते हैं। सो आपको जब हैंडओवर देना है स्टाफ को कोई भी, तो ये एक शीट के साथ डॉक्टर्स को भी दिखा सकते हो एंड नर्सेस टू नर्सेस हैंडओवर भी। फिर ये जैसे मैंने ICU के लिए दिखाया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो NABH बोलता है कि नर्सिंग का डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी आई थिंक एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है नर्सेस के लिए। डॉक्टर्स के लिए कंटिन्यूशन शीट है और नर्सेस के लिए नो डॉक्यूमेंटेशन, ओनली इनटेक आउटपुट एंड वाइटल्स, TPR चार्ट एंड इनटेक आउटपुट चार्ट, है ना। ट्रीटमेंट शीट इज आल्सो देयर। हाँ, ट्रीटमेंट शीट इज नॉट फॉलोड एवरीवेयर, वो भी कोई कोई वार्ड में ही होगा, बिकॉज आपके जो नर्सिंग इंचार्ज दूसरे आए थे उन्होंने बोला सब जगह पे नहीं है। हाँ, तो उसको हम लोग को चेंज करके करना पड़ेगा। एंड दिस इज फॉर हैंडिंग ओवर। हैंडिंग ओवर के लिए कुछ सेपरेट बुक है, कोई पेशेंट को स्पेसिफिक अगर कुछ है, लाइक आपके टाइम पे पेशेंट को सोनोग्राफी करना था बट आपने नहीं कर पाए पेशेंट को, और नेक्स्ट शिफ्ट को हैंड ओवर दे रहे हो, रेफरेंस बुक है,
हाँ, तो फिर वो रेफरेंस बुक को निकाल के ये वाला शीट डालना पड़ेगा अपने को। सो जस्ट क्या है कि ये एक्स्ट्रा काम नहीं है, जो आप लोग कर रहे हो उसको ही सिस्टमेटिक वे में करना है। ये पेशेंट के फाइल में पेशेंट के साथ ही जाएगा। पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक हैंड ओवर है तो इसमें आप मेंशन करो। ये हर एक पेशेंट के लिए एक प्रोजेक्ट इसमें भी शिफ्ट वाइज है, ये 2 दिन के लिए है। है, हर एक पेशेंट के लिए, एवरी पेशेंट्स के लिए। और ये हार्ड कॉपी मिलेंगे ना जो इसका डिस्कशन होगा, बट मैं आपको जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स जो कंपलसरी फॉलो करने हैं एनएबीएच को, वो मैं बता दूँ, बट सप्लाई एंड ऑल विल बी टेकन केयर। हाँ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म एंड एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग फॉर्म, 2 फॉर्म्स है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म है। So adverse drug reaction form will be filled and patient के फाइल के साथ जाएगा MRD में या फिर MRO में जाएगा। और जो adverse drug reaction reporting form जो है, this will be filled and given to pharmacy department. Pharmacy committee जो है, KPI इसका ADR KPI is supposed to be maintained by the pharmacy and therapeutic committee. तो ये fill होके जो reporting form है, it will go to फार्मेसी कमेटी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म है, वो फिल होके पेशेंट के फाइल के साथ जाएगा। और ये फिल कौन करेगा? अभी सपोज कोई नर्स ने मेडिकेशन दिया एंड पेशेंट को इचिंग डेवलप हुआ या फिर रेडनेस हुआ, और जो कंसल्टेंट है, आई थिंक उसके असिस्टेंट को आप इन्फॉर्म करते हो कुछ हो गया पेशेंट को, तो रेजिडेंट को इन्फॉर्म करते हो। So this filling will be done by that resident, ठीक है? Because he will come and examine the patient first. इसमें रिएक्शन के अलावा भी if you are giving any drugs उसके बाद उसका भी मेंशन है। So जिसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, that resident has to fill this both form and make sure that this form goes to the pharmacy committee. ये प्रोटोकॉल है ADR का। NABH assessor can come and ask anyone what is the protocol or policy for adverse drug reaction in your hospital. So वही बोलना है कि if patient develops any ADR, first we'll inform the resident, he'll come and fill it, और जो भी reaction हुआ उसका details करेंगे and adverse drug reaction form will go with patient's file and reporting will be going to the pharmacy and they will analyze it and उसके हिसाब से monthly KPI निकालेंगे ADR का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सेम, जो रेजिडेंट है उनको इन्फॉर्म करना है, बट ये जो फॉर्म है रिएक्शन फॉर्म, दिस विल गो टू ब्लड बैंक। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है ये ब्लड बैंक में जाएगा। सेम डिटेल्स ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट जो दिया है उसका डिटेल है, क्या रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या किया, वाइटल्स क्या है पेशेंट का। सेम ये कंसेंट फॉर्म है। सेम वन मोर थिंग NABH says is सब कंसेंट पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना इम्पोर्टेंट है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर सर्जरी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर एनेस्थेशिया, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो NABH बोलता है इस बाइलिंगुअल होना चाहिए कंसेंट फॉर्म। पेशेंट रिलेटेड कोई भी फॉर्म्स हो जो पेशेंट को फिल करना है या फिर पेशेंट का साइन लगेगा जिसमें, इट शुड बी बाइलिंगुअल, 2 लैंग्वेज में होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है ये 2 लैंग्वेज में है। एंड साइन होना चाहिए डॉक्टर का विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कंसेंट फॉर्म में। सर्जन, एनेस्थेटिस्ट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे तो रेजिडेंट फिल कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ डेट एंड टाइम, उनका साइन एंड नेम। You have to explain to the patient in the language. Explain the language of understanding, that is Marathi or language.
Yeah, you have to write the important thing because patient will read it again. So which consent you are talking about? High risk consent. Preoperative consents. In all consent, we mention that patient has been explained in the language he understands best, either Hindi, Marathi, or English. Okay. Then it's no need. But mostly it should be bilingual only. We make sure that the copies of consent forms are given every day. Because handwritten consent is not that valuable. Patient को भी समझना चाहिए. This is blood transfusion monitoring form. Blood transfusion लेने के बाद the resident is supposed to monitor this at least for 10 minutes, 15 minutes. बीच बीच में आके देखना है patient को कुछ reaction डेवलप होता है क्या, and वो fill करके उनको and blood transfusion में and high risk medication. First of all, pharmacy and therapeutic committee का एक अलग जो meeting होगा उसमें we will identify the high risk drugs. And वो जो list है, it will be circulated to all department. So while administering that particular drug, which is classified as high risk, उसमें double verification लगता है. Same for transfusion of blood products. इसमें भी double verification लगेगा. Verification मतलब doctor to nurse, nurse to nurse और doctor to doctor. Verification, but दो verification लगेगा. Blood transfusion के लिए and high risk medication administration के लिए डबल वेरिफिकेशन इसमें. नीडल स्टिक इंजरी. अभी नीडल स्टिक इंजरी किधर रिपोर्ट किया जाता है? अभी का पॉलिसी क्या है? व्हाट इज अ पॉलिसी नाउ? सपोज किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गया तो किसको रिपोर्ट करेंगे? ओके, तो इस प्रोसेस को थोड़ा कट डाउन करेंगे. अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गया, सो नीडल स्टिक इंजरी का सबका क्लास लिया जाएगा, राइट फ्रॉम हाउसकीपिंग स्टाफ टू एवरीवन. इन केस नीडल स्टिक इंजरी हो गया तो फर्स्ट इन्फॉर्म करना है इंचार्ज को, जैसे आपने बोला, एंड सेकेंड डायरेक्ट कैजुअलिटी जाना है. एंड ये जो फॉर्म है दिस विल बी फिल्ड बाय द CMO. ऑन ड्यूटी CMO का काम है NSI फिल करना. एंड NSI का जो KPI है वो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट विल बी लुकिंग आफ्टर. तो अभी कैसा हो रहा है? डॉक्यूमेंटेशन NSI का होता है. जो PGP रहता है ना वो सब MIS में है, इसके लिए उनको MIS में रहता है. ओके, वी कैन ऐड दैट. हमारे पॉलिसी हॉस्पिटल का सेपरेट पॉलिसी में वी कैन ऐड दैट. बट ये जो फॉर्म फिलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम है, एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन बाय CM. एंड वन मोर थिंग इज दैट इसका जो डेटा बनेगा उसका सॉर्टिंग एंड ऑल विल ICN करेगा. ICN का काम है मंथली जाके देखना NSI कितने हुए हैं और जिस कैटेगरी में हुए हैं. सपोज नर्सिंग कैटेगरी में NSI ज़्यादा हुए हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि नर्सिंग कैटेगरी के लोगों को फिर से एक क्लास लिया जाए NSI का, बिकॉज उधर उनको कुछ पता नहीं है, इसलिए शायद से ऐसा हो रहा है. सो ICN का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंथली जाके डेटा चेक करने का NSI का. हाई रिस्क कंसेंट ऑल्सो सेम, बायलिंगुअल. HICC डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी. HICC का जो भी है, HICC कमेटी का जो मीटिंग होगा उसमें एक्सप्लेन करूँगी. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें मैंने डिस्प्ले नहीं किया है, हाई रिस्क प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट. अभी इसका सेपरेट एक फॉर्म भी रख सकते हैं या फिर वी कैन मेंटेन रजिस्टर्स जो रहेंगे सब जगह पे एक जैसे रजिस्टर्स लेंगे. उसमें हाई रिस्क मेडिकेशन सपोज पेशेंट को दिया, कौन से पेशेंट को दिया, नेम, कौन सा मेडिकेशन दिया और किसने प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर और किसने एडमिनिस्टर किया हाई रिस्क मेडिकेशन नर्स. इसका कॉलम बना के उसमें मेंशन कर सकते हैं. सेम फॉर इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऑल्सो. एक रजिस्टर में वी कैन मेक पार्टीशंस. अभी इसका सबका कॉपी मिलना तो नहीं पॉसिबल है. सो रजिस्टर्स में इंसिडेंट रिपोर्ट भी रख सकते हैं. एनी इंसिडेंट, पेशेंट का फॉल या फिर पेशेंट के रिलेटिव ने कुछ झगड़ा किया कोर्स में आके,
that incident should be recorded in that incident wala page. ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, अभी जो सब कमिटी आई थिंक ये एनएबीएच से ज़्यादा आपको पता है एनएबीएच के बारे में कंपेयर टू अदर स्टाफ, राइट? तो इसमें से वी विल मेक टीम्स एंड दे विल बी डूइंग ऑडिटिंग, ठीक है, डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग। तो उनको सेपरेट एक चेकलिस्ट दिया जाएगा, आपको वेरियस डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाएंगे जिसमें आपको जाके एनएबीएच के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड और नॉट ये देखना है। सो सेम 2 टीम्स अगेन आई टेल यू, ये ओटी का है। WHO चेकलिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एनएबीएच में चेक करेंगे। ओटी प्री ऑफ पेशेंट, पोस्ट ऑफ पेशेंट्स में ये चेक करेंगे। WHO सेफ्टी चेकलिस्ट, दिस इज वन ऑफ द IPSG गोल्स में आता है, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स में आता है WHO सेफ्टी चेकलिस्ट। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं कि पेशेंट को आइडेंटिफाई किया गया प्रॉपरली, पेशेंट राइट पेशेंट है, राइट सर्जरी है क्या, एंटीबायोटिक पेशेंट का बिफोर 1 आवर ऑफ इंसिशन दे रहे हैं क्या, एंड आई थिंक काउंट्स भी है इसमें, इंस्ट्रूमेंट काउंट्स, वो सब इसमें डॉक्यूमेंट होगा। तो इन शॉर्ट पेशेंट का फुल सर्जिकल सेफ्टी इज डूइंग दिस सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। This is to be done by. This is to be done by the circulating nurse. This is to be done inside the OT after the patient is taken in. Timing जो है inside होने के बाद the circulating nurse will read this loudly in front of the anesthetist and surgeon. Like I think as the patient confirmed its identity, so she will ask the patient, okay, Mr. This and this, आप हो क्या? So in presence of everyone, circulatory nurse का काम है ये फिल करने का, एंड इसमें साइन लगेगा सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट का कि they have participated in this. Okay, I think ये part हो गया. I just want to show one more thing. From subcommittee what we will be needing is, हम लोग को पहली बार ऑडिट क्वालिटी कमेटी जो है उसके अंडर there will be a team for auditing only, and secondly for medication management team जो लासा look alike sound alike drugs देखेगा, क्रैश कार्ड, हाई रिस्क मेडिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन। सो मैंने ईच टीम और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो लिखा है। सो ये हम लोग सब कमेटी में से ही निकालेंगे बिकॉज यू आर मोर अवेयर ऑफ NABH एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। सो देयर आर वेरियस टॉपिक्स, तो उसमें पहले वी विल टेक सम पीपल ऑफ यू जिसको ट्रेनिंग देंगे, एंड उनका ट्रेनिंग होने के बाद दे विल बी द वंस हु विल बी ट्रेनिंग अदर्स उनके डिपार्टमेंट में या फिर फ्लोर वाइज कैसे। सो दिस इज द प्लान फॉर NABH। सो यू कैन
now